ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا اور دعا پروگرام میں آپ کا بہت بہت استقبال ہے۔ ناظرین، اللہ کے ہاں دعا سے زیادہ کوئی عمل عزیز نہیں، یعنی انسانوں کے اعمال میں دعا ہی کو اللہ کے رحمت و عنایت کو کھینچنے کی سب سے زیادہ طاقت ہے۔ جس کے لیے دعا کے دروازے کھل گئے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے، اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ بندہ اسے عافیت کی دعا کرے۔ دعا کو مومن کا خاص ہتھیار یعنی اس کی طاقت بھی بتایا گیا۔ دعا آفات سے حفاظت کا ذریعہ بھی ہے۔ ناظرین، نیوز 18 نے اپنی نوعیت کا پہلا پروگرام شروع کیا ہے جس میں آپ اپنے مسائل کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کال کرنا پڑے گا 180041925154، یہ ٹول فری نمبر ہے۔ 9989874324 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ لکھنؤ سے مولانا ہارون نظامی صاحب جڑے ہیں۔ مولانا ہارون نظامی صاحب، بہت بہت استقبال ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہارون صاحب، دعا کی اہمیت پر ایک سرسری نظر ڈال دیجیے، اس کے بعد باقاعدہ انشاءاللہ کالر کو شامل کریں گے۔ الحمد للہ وبہ نستعین، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ دعا کے سلسلے میں آتا ہے کہ دعا کی مقبولیت جمعے کے دن بھی ہوتی ہے، خاص طور سے آج جمعے کا دن ہے۔ تو جمعے کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس گھڑی میں بندے کی اور بندی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اس گھڑی کا خاص کوئی ٹائم نہیں بتایا گیا، یعنی جمعے کے دن کسی وقت بھی، جمعے کی نماز سے پہلے، جمعے کے بعد، عصر کے بعد، یعنی آج کے دن خاص طور سے دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ اور خاص طور سے جمعے کے دن بتایا گیا کہ سورہ کہف کی تلاوت کی جائے۔ جمعے کے دن خاص جو عمل ہے وہ سورہ کہف کی تلاوت کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان مرد ہو یا عورت جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گی یا سورہ کہف پڑھے گا تو اگلی جمعے تک، یعنی آنے والی برائیوں میں، چھپی برائیوں میں سب سے بڑی برائی جو مصیبت ہے وہ دجال کا آنا ہے۔ اگر دجال بھی نکل آیا اس ہفتے تو جس نے سورہ کہف کی تلاوت کی ہوگی دجال کا اثر اس کے اوپر نہیں چلے گا۔ اس لیے ہمارے علماء کرام، بزرگان دین اس وقت ایسے حالات، ایسے ماحول میں خاص طور سے جو ہے ترغیب دیتے ہیں کہ جمعے کے دن سورہ کہف ضرور پڑھا جائے۔ ٹھیک اسی طریقے سے جمعے کے دن دوسرا جو عمل ہے وہ درود شریف کا ہے۔ جمعے کے دن کا جو دوسرا عمل ہے وہ درود شریف کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جمعے کے دن خاص طور سے میرے اوپر درود شریف بھیجا کرو، کیونکہ جو درود شریف جمعے کے دن کوئی بھی مرد یا عورت پڑھے گی یا پڑھے گا تو وہ ڈائریکٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے، اور فلاں ابن فلاں کا نام لے کر فرشتہ بتاتا ہے کہ انہوں نے آپ کے اوپر درود شریف بھیجا ہے۔ اسی طریقے سے ایک چھوٹا سا درود شریف اور آتا ہے، ایک چھوٹا سا درود شریف آتا ہے، بہت سی ماؤں بہنوں کو یاد ہوگا، بہت سے بھائیوں کو یاد رہتا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عصر کی نماز کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد اسی حیت میں بیٹھے بیٹھے جو شخص 80 مرتبہ یہ درود شریف پڑھے گا اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے اور 80 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ پھر سے اس کو سمجھ لیں، جمعے کے دن عصر کی نماز پڑھ کر اسی حیت میں بیٹھے رہے، بغیر کسی سے بات کیے ہوئے 80 مرتبہ یہ درود شریف پڑھے، 80 سال کے گناہ اللہ معاف کرے گا اور 80 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ وہ کون سا درود شریف ہے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یہ درود شریف 80 بار عصر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ بس آخری بات میں اور عرض کر دوں، شیخ العرب والعظم
शेख उल अरब वल अज़म हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने जंग आज़ादी में बहुत बड़ा हिस्सा लिया, वो जुमे के दिन 2 लाख मरतबा दरूद शरीफ पढ़ते थे। जुमे के दिन 2 लाख मरतबा दरूद शरीफ पढ़ते थे और वो सबसे छोटा दुरूद शरीफ पढ़ते थे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दरूद शरीफ 2 लाख मरतबा जुमे के दिन पढ़ते थे। मौलाना मोहम्मद ज़करिया, शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बुजुर्ग आए। उन्होंने कहा कि मैंने हुजूर को ख्वाब में देखा था और अल्लाह के नबी ने कहा है कि मोहम्मद ज़करिया को मेरा सलाम कह दो। तो उन्होंने पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह के नबी, आप किस अमल की वजह से मोहम्मद ज़करिया के पास सलाम पेश कर रहे हैं? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुमे की नमाज पढ़कर और असर तक मोहम्मद ज़करिया मेरे ऊपर दरूद शरीफ भेजता है। जुमे की नमाज पढ़कर और असर तक बैठे बैठे दरूद शरीफ मेरे ऊपर मोहम्मद ज़करिया भेजता है और दुरूद शरीफ की किताब लिखकर दुनिया मंजर के सामने आम कर दिया। तो कहने का मकसद ये है कि जुमे के दिन खास तौर से दरूद शरीफ का अमल किया जाए, सूरह कहफ की ज़रूर तिलावत करी जाए, ज़रूर तिलावत करी जाए, खास तौर से ऐसे माहौल के अंदर कि जो सबसे बड़ी बुराई है दज्जाल का आना, जो आग बरसाएगा, पानी बरसाएगा, लेकिन जिसने सूरह कहफ की तिलावत की होगी उसका भी असर ऐसे शख्स के ऊपर नहीं पड़ पाएगा। तो तमाम नाज़रीन से दरख्वास्त है कि आज के दिन जो है सूरह कहफ और दरूद शरीफ की कसरत करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू हो चुका है, आप भी इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। कोई मसाइल हो, कुछ हल चाहते हो तो आप कॉल कर सकते हैं 18004192 154 ये भी एक नंबर है। मौलाना हारून निज़ामी साहब हमारे साथ लगातार 1 घंटे तक बने रहेंगे, जो आपके सवालों के जवाब होंगे बेहतर ढंग से कुरान और सुन्नत की रोशनी में दिए जाएंगे। एक कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, घर बेचने के लिए जो वजीफा बोले थे ना, वाखुरुज इन्ना का, वो थोड़ा बोलना, और छाती में दर्द के लिए थोड़ा वजीफा बोल देना। हेलो जी जी बिल्कुल, घर बेचने के लिए और सवाल है। हाँ, वो छोटी दुआ सीने में तकलीफ। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह बताया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? मालदा। हम बोल रहे हैं बंगाल से बोल रहे हैं। बिल्कुल, सवाल पूछिए अपना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारा एक तरक्की सर्विस में तरक्की के लिए हम कोई वजीफा बता दीजिए। क्या सर्विस, क्या काम करते हैं? हम नौकरी करते हैं, नौकरी में तरक्की नहीं होता है, अटका हुआ पड़ा हुआ है। चलिए, बिल्कुल इंशाल्लाह बताया जाएगा। और एक सवाल है हमारा, और एक सवाल है जो घर में बाबरकत नहीं है, झगड़ा लग रहा है। वाइफ हमारा बीवी है ना, ज्यादा से ज्यादा राग होता है, ज्यादा घर में झगड़ा होता है। झगड़ा होता है, राग ज्यादा होता है, क्या करना? हाँ, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, इंशाल्लाह बताया जाएगा। तो मौलाना साहब, 2 कॉलर आ गए हमारे पास से। एक घर बेचना चाहती, कोई वजीफ़ा इनको बताया था, शायद एक बार फिर जानना चाह रही हैं, और सीने में तकलीफ़ है, इसके लिए अगर कोई दुआ हो तो बता दीजिए। जी, बहन को पिछले हफ्ते ही बताया गया था, फ़ख़्रुज इन्नका रजीम, फ़ख़्रुज इन्नका रजीम, फ़ख़्रुज इन्नका रजीम। ये दुआ तस्बीह सुबह पढ़ना है और शाम को पढ़ना है। जहाँ पे 8वां सिपारा निस्फ होता है आधा, वहाँ पे ये दुआ लिखी हुई है। और बहन के जो सीने में तकलीफ़ रहती है तो कड़वे तेल के ऊपर दम कर लें सूरह अलम नशरह, कड़वे तेल के ऊपर दम कर लें सूरह अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक। इस दुआ को 11 मरतबा तेल के ऊपर दम कर लें इस सूरत को, और सीने पे जहाँ पे तकलीफ़ हो रही वहाँ पे तेल की मालिश करें, इंशाल्लाह तकलीफ़ दूर हो जाएगी। और एक भाई का मगरबी बंगाल से कॉल था, सर्विस में तरक्की के लिए कोई वजीफ़ा हो, कोई दुआ। इनकी कह रहे हैं कि
जो तरक्की होनी थी वो रुकी हुई है। इसके अलावा घर में बरकत के लिए, इसके अलावा घर में झगड़े बहुत होते हैं, इस ताल्लुक से अगर कोई दुआ हो, कोई वजीफ़ा हो तो बता दीजिए। सर्विस में तरक्की के लिए भाई को चाहिए कि हर नमाज के बाद 11 मरतबा ये दुआ पढ़ें, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ। ये दुआ हर नमाज के बाद 11 बार पढ़ें तो इंशाअल्लाह आगे अल्लाह ताला इनको तरक्की अता करेगा। और जो घर में नाइतफाकियाँ रहती हैं तो उसके लिए कुरान मजीद के अंदर एक दुआ आती है, वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन इख्वानन अला सुरुरिन मुतकाबिलीन, वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन इख्वानन अला सुरुरिन मुतकाबिलीन। 8वां सिपारा जहाँ पे सलास होता है वहाँ पे ये दुआ लिखी हुई है। इसको 41 मरतबा पानी पे दम कर ले और वही पानी खुद पिए, घर वालों को पिलाए, तो इंशाल्लाह एक कदूरत नफरतें दूर हो जाएंगी, अल्लाह मोहब्बत अता करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, एक और कॉलर को शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? जिला जला और बकानी से बोल रहे हैं सलीम भाई। सलीम भाई बताइए। सलीम भाई, क्या सवाल, क्या जानना चाहते हैं? मेरी वालदा मतलब ये बोल नहीं पाती, 10 साल से लकवे की शिकार है, आवाज बैठ गई, इसकी आवाज खत्म हो गई है। वालदा की? हाँ जी। उम्र क्या है वालदा की? उम्र है इसकी मतलब 70 के आसपास। 70 की। ओके ओके, ठीक है। और कोई सवाल? और एक हमारा अहिल्या के मतलब कान से बिल्कुल नहीं सुन पाती, ऑपरेशन के लिए भी मना कर दिया, तो इसके लिए भी कोई वजीफा बताए। एरिया के कान में प्रॉब्लम है, ठीक है, जी बताएंगे इंशाल्लाह। ध्यान से देखते रहिए प्रोग्राम, इंशाल्लाह बताया जाएगा। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जुबैदा जी बताइए। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जी वालेकुम सलाम। सवाल पूछिए अपना। बॉम्बे से सवाल करती जी जी जुबैदा जी। हाँ। मैं रोज रात को सूर्य का पढ़ती हूँ, चले मैं रात को पढ़ लेती हूँ, सब ठीक पढ़ती हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज 11 वक्त रोज पढ़ती हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी सवाल पूछिए अपना। सवाल क्या है? मेरे पैरों में ना इतना दर्द है कि अंदर चस्के आते, मैं नीचे उतर नहीं सकती। पैरों में दर्द है? पैरों में दर्द बहुत है। चलिए बिल्कुल इंशाल्लाह बताया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर को शामिल कर लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? दिल्ली से बोल रहे हैं सलमा। जी सलमा जी बताइए, क्या सवाल है, क्या जानना चाहते हैं? सवाल यह है कि जैसे हम कोई चीज के लिए हाजत की नमाज पढ़ते हैं, हमारी कोई मुद्दुआ हो तो उसके लिए हाजत की नमाज पढ़ते हैं, तो जब तक पूरा ना हो तब तक वो नमाज पढ़ते ना, या कि एक ही दिन पढ़ा? ठीक है, बिल्कुल इंशाल्लाह बताया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सलमा जी कॉल करने के लिए। तो मौलाना साहब, कई कॉलर आ गए हमारे पास। सलीम भाई का कॉल था, उन्होंने कहा कि उनके वालदा 70 साल उम्र बता रहे हैं, फालिश का असर है, लकवे का ग़ालिबन उन्होंने जिक्र किया, तो वो बात वगैरह नहीं कर पाती हैं। इस ताल्लुक़ से कोई दवा हो, कोई दुआ हो, कोई वजीफ़ा हो, बता दीजिए। इसके अलावा इनकी अहलिया के कान में प्रॉब्लम है, बिल्कुल सुन नहीं पा रही, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए भी मना कर दिया है, तो इस ताल्लुक़ से भी अगर कोई दुआ हो तो बता दीजिए। भाई की जो वालदा की तकलीफ़ है तो इनको चाहिए कि असली जैतून ले लें। असली जैतून के ऊपर कुरान मजीद की ये आयत पढ़ें, अल्लाहु युमसिकुस समावाति वल अर्ज़ अन तज़ूला, अल्लाहु युमसिकुस समावाति वल अर्ज़ अन तज़ूला। ये दुआ 22वें सिपारे में लिखी, जहाँ पे सलास होता है। पूरी आयत को 101 मरतबा पढ़ें और जैतून के तेल के ऊपर जो है दम करके जहाँ पे लकवे की तकलीफ़ है वहाँ पे मालिश करें तो इंशाल्लाह ये तकलीफ़ दूर हो जाएगी। और दूसरे जो भाई ने बताया कि इनकी अहलिया के या इनकी वालदा के जो सुनने में तकलीफ़ होती है, तो उनके लिए दो अमल ये हैं कि उनको चाहिए कि सुबह जो है उनके कान में अजान दिया करें। सुबह जो है उनके कान, दोनों कान में अजान दें, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, इस तरीके से दोनों कान में अजान दें।
اور شام کو یہ 5 حروف ان کو پانی پہ دم کر کے پلا دیا کریں. کاف ہا یا عین صاد. کاف ہا یا عین صاد. یہ 5 حروف ان کو جو ہے پانی پہ دم کر کے شام کو پلانا ہے. صبح ان کے کان میں اذان دینا ہے. اور جو والدہ کے لیے بتایا گیا کہ اصلی زیتون کے اوپر اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، یہ پوری آیت پڑھ کر 101 مرتبہ زیتون کے تیل کے اوپر دم کر کے مالش کرے، اللہ ان کو شفا عطا کرے گا. چلیے اللہ شفا دے. ایک زبیدہ کا کال تھا، ریگولر کالر ہمارے پاس، ریگولر کال کرتی ہیں، پیروں میں ان کے تکلیف ہے، لگاتار اسی تعلق سے سوال کرتی ہیں. تو اگر کوئی اس کے لیے کوئی بہتر دعا ہو، کوئی عمل ہو تو بتا دیجیے. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. یہ دعا پانی پہ دم کر کے پئیں اور پیروں پہ دم بھی کر لے تو انشاءاللہ پیروں کی تکلیف دور ہو جائے گی. بالکل. مولانا صاحب ایک بہن کا کال تھا سلمہ کا، انہوں نے کہا کہ حاجت کی جو نماز ہم پڑھتے ہیں وہ کب تک پڑھنی ہے؟ ایک بار پڑھ کے ختم کر دیں یا جب تک ضرورت جو بھی ہے حاجت ہے وہ پوری نہ ہو جائے تب تک اس کو برابر کنٹینیو کرتے رہیں؟ نہیں، حاجت کی نماز کو جاری و ساری رکھیں جب تک ان اپنے مقاصد کے اندر، اپنے مقصد کے اندر ان کو کامیابی مل نہ جائے، جب تک ان کی حاجت پوری نہ ہو جائے، جب تک اس کو جاری و ساری رکھیں، اس کو ریگولر پڑھتی رہیں. چلیے بہت بہت شکریہ. تو ناظرین آپ بھی اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں. مولانا ہارون نظامی صاحب ہمارے ساتھ آج بنے ہوئے جو آپ کے سوالوں کے قرآن و سنت کی روشنی میں جو بھی بہتر حل ہے وہ بتا رہے ہیں. 180041921548 ٹول فری نمبر ہے. 9989997432 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں. ایک کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم راجستھان سے بول رہے ہیں. راجستھان سے. سوال پوچھیے بھائی اپنا. میرا سوال تھا کہ حدیث کے اندر امام مہدی اور الدجال کے بارے میں کیا کیا کہا گیا ہے؟ اور کوئی سوال ہے؟ اور کوئی سوال تو چلو میں بعد میں فون کر دوں گا. چلیے ٹھیک ہے، ممکن ہوگا تو بالکل بتائیں گے. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے ہم بات آپ کر؟ سے 2 سوال پوچھنا چاہتے ہیں. پوچھیے. پہلا سوال. پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے بیٹا نے حافظ اور عالم کا کورس کر لے، یہ دعا بتاؤ آپ ہمیں. کیا چیز کا؟ حافظ اور حافظ اور عالم عالم. کا کورس کر لے، یہ ہمارے لیے آپ ٹھیک. دعا بتا دو. ٹھیک ہے. کیا عمر ہے بچے کی؟ حافظ نہیں بچے. حافظ کا کورس کر چکا ہے، اس کا دور کرنا ہے، یہ دعا بتا دو. عالم کا بھی کورس کر لے. ٹھیک، عالم کا بھی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے چلیے بتایا جائے گا. اور دوسرا سوال. ٹی وی سیٹ سے تھوڑا سا دور ہو کر بہن بات کریں، اس سے پہلے بھی کہا گیا ہے. دوسرا سوال اگر بتا سکتے. دوسرا سوال پوچھیے. تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، مطلب قضا ہو جائے تو بولیے. دوسرا سوال یہ ہے، ٹی وی سے تھوڑا سا دور ہو کر بات کیجئے، دوبارہ کال کیجئے، انشاءاللہ بتایا جائے گا. آپ سے کتنی بار کہا جب بھی بات کریں ٹی وی سیٹ سے تھوڑا سا دور ہو کر بات کریں. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہاں السلام علیکم. جی کہاں سے بات کریں؟ کون کر رہے ہیں؟ میں بہار شریف سے بات کر رہا ہوں. بہار شریف سے. میرا یہ سوال ہے کہ میرے والد اور والدہ دونوں کے پیروں میں بہت درد ہے، میں کیا کروں؟ والد اور والدہ دونوں کے پیروں میں درد رہتا ہے. ٹھیک ہے. میرے والد اور والدہ دونوں کے پیروں میں بہت درد ہوتا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتایا جائے گا. بالکل پروگرام کو دیکھتے رہیے دھیان سے. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں مڈاور پیشور سے بول رہا ہوں. محمد الیاس. جی الیاس صاحب سوال پوچھیے. یہ
खबर के बारे में मालूम करना था। जो लहद नीचे की खुदती है वो कितनी दोबारा एक बार सवाल फिर से पूछिए, आवाज नहीं आ रही है इलियास साहब। जी जी, मैं ये मालूम कर रहा था कि जो लहद खुदती है कबर नीचे वाली, ठीक है। उसका साइज क्या होता है? चलिए बिल्कुल जी इंशाल्लाह, जी, बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह बताएंगे, जवाब देंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो मौलाना साहब कई कॉल आ चुके हैं। राजस्थान से भाई ने फ़ोन किया था कि इमाम मेहदी और दज्जाल का क्या जिक्र आता है किताबों में, हदीसों में, इस ताल्लुक से अगर कुछ बता सके तो। इमाम महदी के बारे में आता है, सबसे पहले तो ये समझ लें कि बाज़ लोग जो है इसको समझ लेते हैं कि मेहंदी अलैहिस्सलाम कहते हैं। लफ्ज़ मेहंदी नहीं है, महदी महदी लफ्ज़ है, महदी यानी हिदायत देने वाला। तो महदी अलैहिस्सलाम जो है, महदी आएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़ुर्ब क़यामत के करीब महदी आएंगे और उनका नाम मेरे नाम से होगा, उनके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम से होगा। यानी इमाम महदी का भी नाम जो है मोहम्मद होगा और इमाम महदी के वालिद का भी नाम अब्दुल्ला होगा। क़ुर्ब क़यामत के करीब आएंगे और दमिश्क की जामा मस्जिद के ऊपर जो है वो उस वक़्त जो है आएंगे और मीनार से जो है नीचे उतरेंगे। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो है उस वक़्त भी जो है वो भी आसमान से आएंगे। तो ये दोनों मिलकर जो है दुनिया के अंदर जो है उस तरीके से जो है इमाम महदी के बारे में आया कि वो बैतुल्लाह के करीब बैठकर लोगों को बैत करेंगे और वो जब तवाफ़ कर रहे होंगे इमाम महदी, उस वक़्त लोग उनको पहचान पाएंगे कि यही इमाम महदी है। वो अपने आप को ज़ाहिर नहीं करेंगे, तो उस वक़्त सारे के सारे लोग उनसे बैत हो जाएंगे और ऊपर ईमान ले आएंगे। और उसके बाद जो है इमाम महदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिलकर ये दोनों लोग जो है वो दुनिया के अंदर जो याजूज माजूज होंगे उनका खात्मा करेंगे, जो बुराइयां होंगी उनका खात्मा करेंगे और बड़ी खुशहाली और बड़ी जो है बरकत और बड़ी हरियाली हो जाएगी। इसी तरीके से दज्जाल के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आने वाली बुराइयों में, छुपी बुराइयों में सबसे बड़ी बुराई जो है वो दज्जाल की बुराई है। यानी दज्जाल जब आएगा तो वो फिर जो है उसको अल्लाह ही की तरफ से ये ताकत और ये कुदरत मिली होगी कि वो इसके एक हाथ में जन्नत होगी, एक हाथ में जहन्नम होगी। जो उसको खुदा मान लेगा वो उसको जन्नत में डालेगा, हालांकि वो जहन्नम होगी। और जो उस पर ईमान नहीं लाएगा, उसको खुदा नहीं मानेगा, तो वो जहन्नम में डालेगा, हालांकि वो जन्नत होगी। लेकिन जो है उस तरीके से ऐलान करेगा अपनी खुदाई का। दज्जाल के बारे में आया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने दज्जाल की निशानियां बताई, लेकिन मैं निशानी बताता हूं कि उसके पेशानी के ऊपर लफ्ज़ काफिर लिखा हुआ होगा, जिसको एक जो मोमिन होगा वही उसको पढ़ पाएगा। और आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तमाम नबियों ने दज्जाल की निशानियां बताई, लेकिन मैं एक निशानी और उसकी बताता हूं कि वो एक आंख का होगा, एक आंख का होगा, काना होगा, एक आंख होगी दज्जाल के। तो इस तरीके से वो आएगा, दुनिया के अंदर जो है फसाद और दुनिया के अंदर काट मार और गारतगरी करेगा और अपने आप को खुदा कहलाएगा। जो लोग उसको मान लेंगे तो उनको जन्नत में डालेगा, हालांकि वो जहन्नम होगी लेकिन दिख रही होगी जन्नत। इस तरीके से वो करते 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 पूरी दुनिया के अंदर फसाद मचाएगा और फिर जो है वो मदीने की तरफ अपना रुख करेगा, मदीने की तरफ अपना रुख करेगा। लेकिन मदीने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला जो है न मालूम कितने हजार फरिश्तों की अल्लाह ड्यूटी लगा देगा, वो फरिश्ते घेरा बना लेंगे और दज्जाल मदीने के अंदर एंट्री नहीं कर पाएगा। वहां से एक मर्द मोमिन निकलेगा, एक मर्द मोमिन निकलेगा, बाहर आएगा और दज्जाल उससे कहेगा देखो मुझे खुदा मानो, तो वो कहेगा कि नहीं, मैं तुम्हारे खुदा के ऊपर ईमान लाता हूं। ये तवील वाक़िया है कि फिर वो उस पर जो है कोशिश करेगा कि इसको भी हम ख़त्म करें, उसको मारेगा और फिर उसको जिलाएगा दज्जाल। लेकिन वो फिर जब शख्स खड़ा होगा मदीना का, वो मर्द मोमिन, वो
کہے گا اب تو مجھے پورا یقین ہو گیا کہ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ دجال آئے گا، مدینے سے باہر ایک آدمی کو مارے گا، پھر اس کو زندہ کرے گا، یہ تو وہی دجال ہے، لہذا جب وہ اور اندر کوشش کرے گا تو پھر جو مدینے کے اندر جانے کی کوشش کرے گا تو پھر وہ نمک کی طرح جو ہے، جیسے نمک پانی کے اندر پگھل جاتا ہے، اس طریقے سے وہ دجال جو ہے پگھل جائے گا۔ تو یہ نشانیاں قرب قیامت کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ حق ہے۔ ابھی جیسا کہ میں نے بتایا کہ سورہ کہف کی تلاوت جو جمعے کے دن کرے گا، جو شخص سورہ کہف کی تلاوت جمعے کے دن کرے گا، اگر دجال نکل آیا اس ہفتے اگلے جمعے تک نکل آیا تو پھر ایسے شخص کے اوپر دجال کا اثر نہیں کرے گا، تو امام مہدی کا آنا برحق ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا برحق ہے، دجال کا آنا برحق ہے۔ چلیے بہت بہت شکریہ۔ ایک اور بہن کا کال تھا کہ ان کا بچہ ہے، حافظ ہے، حفظ کر لیا اس نے اور وہ عالم بھی بننا چاہ رہا ہے، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ ہو، کوئی دعا ہو کہ وہ اس میں بھی کامیابی اس کو حاصل ہو۔ بہن کو چاہیے کہ صبح سورہ مدثر، بہن کو چاہیے کہ صبح سورہ مدثر کی ایک مرتبہ تلاوت کر کے پانی میں دم کر کے پی لیا کریں، اور شام کو جو ہے سورہ علم نشرہ، شام کو سورہ علم نشرہ 11 مرتبہ، صبح سورہ مدثر 1 مرتبہ پانی پہ دم کر کے پلائیں تو آگے کے راستے اللہ تعالیٰ کھولیں گے۔ چلیے ایک اور سوال تھا تہجد کے تعلق سے، بہن پوچھنا چاہ رہی تھی لیکن ٹی وی ان کا آن تھا، وہاں پر پوری آواز آ رہی تھی، سمجھ میں نہیں آیا، لیکن وہ پوچھنا چاہ رہی تھی غالباً کہ تہجد کی نماز اگر قضا ہو جائے تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ تہجد کی نماز میں اگر آنکھ کھل گئی تو تہجد کی نماز پڑھ لیں، بہت بڑی فضیلت ہے، برکت ہے، لیکن اگر کوئی شخص تہجد کی نماز نہیں پڑھ پایا تو اس کی قضا نہیں ہے۔ چلیے، اور ایک بھائی کا کال تھا بہار سے، بچہ تھا کوئی، ان کے والد اور والدہ کے پیروں میں بہت درد رہتا ہے، تو اس کے لیے وہ کیا کرے یہ جاننا چاہ رہے تھے۔ اصلی زیتون کے اوپر دم کر لیں، وبالحق انزلناہ وبالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، وبالحق انزلناہ وبالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا۔ اصلی زیتون کے اوپر 21 مرتبہ اس دعا کو پڑھ کے دم کر لے اور پیروں پہ مالش کرے تو انشاءاللہ درد دور ہو جائے گا۔ چلیے بہت بہت شکریہ۔ ایک بھائی الیاس کا کال تھا، قبر کے تعلق سے وہ جاننا چاہ رہے تھے کہ جو قبر بنائی جاتی ہے 2 اسٹیپ میں ہوتی ہے، جو فائنل اسٹیج ہوتا ہے، اس کا سائز کیسے بنائیں گے یا کیا سائز ہوگا، کچھ اس کا پیرامیٹرز ہے کیا؟ قبر کو کھودنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کو پہلے جو ہے اتنا کھول لیا جائے، کم سے کم 1 ہاتھ کے برابر اس کو کھود کے جہاں پہ پٹرے لگائے جاتے ہیں، پٹرے جہاں پہ لگائے جاتے ہیں، پھر اس کے نیچے وہ جو ہے بنگلی ہوتی ہے جس کو بنگلی بولتے ہیں، بنگلی کے اندر اتنا نیچے کھودنا ہے کہ آدمی جو ہے اس کے اندر بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد یہ محسوس کرے کہ جو پٹرے اوپر لگائے جائیں گے یہ میرے سر میں نہ لگنے پائیں، یعنی بنگلی کو اتنا کھود دیا جائے اور اس میں بیٹھ کے دیکھے کھودنے والا کہ جب وہ اٹھ کے بیٹھے تو اس کے سر میں پٹرے نہ لگیں، اس طریقے سے کھودنا چاہیے، کیونکہ جو ہے حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب دفنانے والے اور مٹی ڈالنے والے واپس آ جاتے ہیں تو فرشتہ آتا ہے، وہ روح ڈالتا ہے تو مردہ جو ہے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، مردے کے بارے میں آیا کہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، اسی لیے کہا گیا کفن کی یہ جو گرہ ہوتی ہے سر والی، اس گرہ کو قبر کے اندر ڈھیلی کر دینا چاہیے اور کھول دینا چاہیے تاکہ جب مردہ اٹھ کے بیٹھے تو سر سے اس کا کفن جو ہے گر جائے اور یہ محسوس کر لے کہ پٹرے اس کے سر میں نہ لگے، اس طریقے سے بنگلی کھودنی چاہیے۔ چلیے بہت بہت شکریہ۔ پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ارے میں یو پی سے بول رہا ہوں، نام بتائیے اپنا۔ ناظم۔ جی ناظم صاحب بتائیے، سوال پوچھیے اپنا۔ ایسا ہے کہ 7 سال ہو گیا، ہم کو بہت درد ہوتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، دوا کیا، دوا کر رہا ہوں، بیٹھ کے نماز پڑھتا ہوں، نماز ایک ٹائم کی نہیں چھوٹتی ہماری، کم سے کم 2000 درود سے ہی پڑھتا ہوں ڈیلی 5 وقت ملا کے۔ درد کہاں پہ رہتا ہے؟ درد کمر میں بیٹھ نہیں پاتا، بیٹھ کے نماز پڑھتا ہوں کرسی پر، چل بھی نہیں پاتا، بس لیٹے لیٹ رہتا ہوں، بیٹھے رہتا ہوں، بیٹھ کے کرسی پر نماز پڑھتا ہوں 5 وقت، ایک ٹائم کی نماز قضا نہیں ہوتی، اور جو وظیفہ بتاتے پڑھتے، اور درود شریف کم سے کم 2000 5 وقت ملا کے 2000 2500 پڑھ لیتا ہوں۔
समझे? ठीक और है। जो वजीफा बताते हैं इधर उधर सब याद करके डेली देख कर लिख ले पढ़ता हूँ, लेकिन कुछ आराम नहीं है, समझिए बहुत तकलीफ है, कमर में बहुत ज्यादा तकलीफ है। बहुत तकलीफ, बैठ नहीं पाता, बैठ के नमाज पढ़ता हूँ। चलिए बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह बताएंगे नाजिम साहब, बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं पीर गुलाम बोल रहा हूँ जलकरंजी से। बताइए गुलाम साहब। जी मेरा सवाल ये है कि मैं 1 महीना पहले गिर गया था, तो मेरे कमर में बहुत दर्द रहता है। दवा तो ऐसे ही चालू है, तो उसके लिए कोई वजीफा कि जल्दी चलिए आराम हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल, 2 सवाल एक जैसे इंशाल्लाह। और अभी एक सवाल और है कि मैं नमाज वगैरह नहीं पढ़ सकता क्योंकि पाबंदी नहीं रख सकता हूँ, पाकी नहीं बजा पाता हूँ, बैठने को नहीं होता है, इसके लिए संडास पेशाब खड़े होकर ऐसा करना पड़ता है, इसके लिए पाकी ज्यादा नहीं रह पाता है, इसके लिए कोई वजीफा मतलब? ठीक है बिल्कुल इंशाल्लाह बताया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मौलाना साहब 2 कॉलर एक जैसे ही हैं, दोनों के चोट की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से कमर में तकलीफ़ है, जिसकी वजह से वो नमाज या तो इशारे से या बैठ के पढ़ रहे हैं। कोई वजीफ़ा हो अगर उसमें कुछ आराम मिले इनको। दूसरा भाई का सवाल इसी से जुड़ा हुआ था कि बैठने में उनको दिक्कत होती है, तो इस्तिंजा वगैरह जो करते हैं वो खड़े होकर करते हैं, नापाक हो जाते हैं, तो नमाज की पाबंदी नहीं कर पाते हैं। तो इस ताल्लुक़ से भी कोई अगर वजीफ़ा हो तो बता दीजिए कि इनको थोड़ा इफाका हो उसमें। जी दोनों भाइयों को चाहिए कि सूरे अलक, दोनों भाइयों को चाहिए कि सूरे अलक, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक, ये 30 सिपारे में सूरत लिखी सूरे अलक। पूरी सूरत को 11 मरतबा असली जैतून के ऊपर दम कर ले, असली जैतून के ऊपर दम कर ले, और अगर जैतून ना मिल पाए तो कड़वे तेल के ऊपर दम करके 11 मरतबा, और वो जो है कमर के ऊपर जहाँ पे तकलीफ है वहाँ पे मालिश करें, तो इंशाल्लाह ये तकलीफ दूर हो जाएगी। और दूसरे की इनको चाहिए कि जो है 11-11 मरतबा सूरे फातिहा अल्हम्दु शरीफ पानी पे दम करके पिएं। 11 मरतबा सूरे अलक असली जैतून पे दम करना है या कड़वे तेल के ऊपर दम कर लें, वहाँ पे मालिश करें, और 11 मरतबा सूरे फातिहा अल्हम्दु शरीफ पानी पे दम करके ये सुबह शाम पिए, तो इंशाल्लाह ये तकलीफ दूर हो जाएगी। और भाई ने जो सवाल किया है कि वो पाकी नापाकी के बारे के सिलसिले में कि वो नमाज की पाबंदी नहीं कर पाते हैं, देखिए सबसे अव्वल तो इनको नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि इनका दिल नहीं भरता है, खड़े होकर पेशाब कर लेते हैं। कभी कभी कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि उसमें उज़्र में इंसान आ जाता है, तो उज़्र के मामले में बहुत सारी माफ़ी है और बहुत सारी चीज़ें मुआफ़ हो जाती हैं। जैसे अब ये खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं तो उसमें कोई हरज नहीं है, तकलीफ़ है, और अपने पाकी को हासिल कर ले। बदन में या कपड़े में कहीं पे छींट अगर लग गई है तो उसको पानी से जो है 3 मरतबा साफ कर ले, ये भी पाक है, कपड़ा भी इनका पाक है। नमाज को ना छोड़े किसी भी हालत में। ये ना अपने दिल को समझाए कि मेरा दिल नहीं भरता, दिल भरे या ना भरे, शरीयत ने उज़्र की हालत में बहुत सारी गुंजाइश निकाल दी है। खड़े होकर आप पेशाब कर रहे हैं, छींटें पड़ गई हैं, अगर तो कोई हरज नहीं है, आप पानी से पाक कर लीजिए। और अगर नहा भी नहीं सकते तो आप तयम्मुम कर लीजिए गुस्ल का, और आप नमाज की पाबंदी ज़रूर रखें, अल्लाह कबूल करने वाला है, आप पढ़ते रहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ वसीम भाई बात कर रहा हूँ गुजरात से। मैं बता रहा हूँ मैंने अपने घर गिरवी रखा और उसको भाड़े से दे सकते हैं, उसका भाड़ा ले सकते हैं अपने, तो मौलाना साहब से पूछना है। आपने अपना घर गिरवी रखा है? नहीं, अपने दूसरा घर गिरवी रख के अपने उसका भाड़ा ले सकते हैं साहब? नहीं सवाल नहीं समझ में। घर आपका है? नहीं, हेलो, मैं घर जो दूसरे का रखा हुआ है। हेलो जी जी। हाँ, तो उसका अपने भाड़ा ले सकते हैं, ये बता रहा हूँ आपको। नहीं सवाल ये आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है। घर किसका है? घर दूसरे का है, अपना नहीं है। तो भाड़ा आप क्यों लेंगे? हाँ, मैंने गिरवी रखा हुआ है। बहरहाल देखते हैं। हेलो, किसी ने घर आपके पास गिरवी रख दिया है, आप उसको किराए पे उठाना चाह रहे हैं, ये है? हाँ। चलिए ठीक है।
हाँ, तो मतलब मैं अपने उसके भाड़ा ले सकते हैं या बिल्कुल नहीं? बिल्कुल इंशाल्लाह बिल्कुल बताया जाएगा। तो मौलाना साहब भाई का वसीम भाई का कॉल था कि किसी का घर है, उन्होंने इनके पास गिरवी रखा है, तो क्या वो किराए पे दे सकते हैं या उससे कुछ आमदनी अगर हासिल हो सकती है तो ले सकते हैं क्या? अब अगर मकान मालिक ने इनके हैंडओवर कर दिया, इनके कब्जे में दे दिया है, तब तो इनके लिए गुंजाइश है, ले सकते हैं। लेकिन अगर मालिक की इजाज़त के बगैर भाड़ा ले रहे हैं तो ये जायज़ नहीं होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन आप भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। 1800419215 और ये टोल फ्री नंबर है 99997432 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। मौलाना हारून निज़ामी साहब लगातार हमारे साथ बने हुए जो आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फ़ौरन हाजिर होते हैं। एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुआ और दवा। हमारे साथ मौलाना हारून निज़ामी साहब लगातार बने हुए हैं जो आपके सवालों के बेहतर जो भी जवाब हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में वो दे रहे हैं। आप भी इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। 1800419215 ये टोल फ्री नंबर है। 9989974324 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। एक कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। टीवी से थोड़ा सा दूर हो जाइए भाई, थोड़ा टीवी सेट से दूर होकर बात कीजिए। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ, कश्मीर से। कश्मीर से जी, सवाल पूछिए अपना। सवाल ये है कि हमारा जो नौकरी कर रहा हूँ, पैसा भी बहुत कमा रहा हूँ, ना घर में जमा रहता है ना जेब में जाता है। जब पैसे आती है जैसे ये घास को आग लगती है ना, ऐसे उड़ जाती है। समझ नहीं आ रहा। नमाज भी पढ़ रहा हूँ, ढाई सुबह भी पढ़ रहा हूँ, और मुफ्ती साहब से ये पूछना ये बरकत क्यों नहीं हो रहा उतनी, क्योंकि दिन में बरकत बहुत हो रहा है घर में, अच्छा है खाना पीना जीना मकान भी, मगर जब पैसा आएगा जेब में उड़ जाता है। चलिए बिल्कुल इंशाल्लाह बताया जाएगा। उठ जाता है और घर में अगर रखेंगे पैसे वो रहेगा ही नहीं। चलिए बिल्कुल इंशाल्लाह बरकत कितने भी पैसे आए बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह बताएंगे। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वो डबल मतलब सवाल का जवाब थोड़ा समझ में नहीं आया, डबल बताना मौलाना साहब से। कौन सा सवाल था आपका बताइए? बकानी से पूछ रहा था। एक तो मेरी वालिदा वो सुन नहीं पाती है, लकवे की शिकार वाला सवाल, एक जो कानों से वो कम अहलिया के कान में जो तकलीफ है, ये वाला डबल दोहरा दे थोड़ा। ठीक है चलिए बिल्कुल बताएंगे। वैसे ये प्रोग्राम आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, दुआ और दवा टाइप कीजिए, कल इंशाल्लाह ये प्रोग्राम वहाँ पर आपको मिल जाएगा। बिल्कुल बतवा दे रहे हैं, अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप यूट्यूब पर भी इस प्रोग्राम को देख सकते हैं, कल ये अपलोड हो जाएगा तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो मौलाना साहब दो कॉलर आ चुके हैं हमारे पास। एक भाई कश्मीर से कॉल कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जॉब करते हैं, पैसा भी अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन बरकत नहीं हो रही है, जो पैसा आ रहा है घर में वो रुकता नहीं। और दूसरे भाई का कॉल था जो उन्होंने बताया था वालदा को लकवे की शिकायत है और उनकी अहलिया को कान में तकलीफ है, सुनाई नहीं दे रहा। तो एक बार फिर से वो जानना चाह रहे हैं, नोट नहीं कर पाए शायद। बरकत के लिए इनको चाहिए कि रोज़ाना एक मरतबा सूरह रहमान की तिलावत करे घर में। बरकत के लिए रोज़ाना एक मरतबा घर में सूरह रहमान की तिलावत करे, और दूसरे की जो है सुबह एक तस्बीह पढ़ लिया करें, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। ये दो अमल करें तो इंशाअल्लाह जो पैसा आता है वो इंशाअल्लाह रुकेगा और बरकत होगी। और भाई को जो मैंने बताया था कि उनकी वालदा की लकवे की शिकायत थी, तो उनको चाहिए कि मैंने बताया था कि असली जैतून का तेल ले ले। अब अगर जैतून का तेल नहीं मिलता है तो वो कड़वा तेल ले ले। और कुरान मजीद की ये आयत जहाँ पे 22 सिपारा का सलास होता है, 22वां सिपारा जहाँ पे सलास होता है, वहाँ पे ये दुआ लिखी है, अल्लाहु युमसिकु समावाति वल अर्ज़ अन तज़ूला, अल्लाहु युमसिकु समावाति वल अर्ज़ अन तज़ूला।
اس دعا کو جو ہے وہ تیل کے اوپر دم کر لے، تقریباً 101 بار پڑھ کے دم کر لے، اور وہیں پہ مالش کرے جہاں پہ لقوے کی شکایت ہے، تکلیف ہے، تو انشاءاللہ اس میں شفا ہوگی۔ اور بلکہ جو کان میں سنائی نہیں دیتا اس کے لیے میں نے بتایا تھا کہ صبح اذان دینا ہے، صبح اذان دینا ہے دونوں کانوں میں، اور شام کو یہ 5 حروف جو ہیں ان کو ایسے پڑھنا ہے، قاف، ہا، یا، عین، صاد، اس طریقے سے جو ہے ان کو 5 بار پڑھنا ہے، پانی پہ دم کر کے پلا دینا ہے۔ چلیے بہت بہت شکریہ، پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اپنا نام بتائیے۔ ہم راجستھان سے بول رہے ہیں۔ نام بتائیے۔ میرا سوال تھا کہ وتر کی نماز کے 2 طریقے ہیں نماز پڑھنے کے، صحیح طریقہ کون سا ہے؟ چلیے وتر کی نماز کا طریقہ بالکل بتائیں گے آپ کو، بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر کو شامل کر لیں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں بھائی؟ جی میں ویسٹ بنگال بردھمان سے بات کر رہا ہوں، میرا نام محمد الطاف ہے۔ جی الطاف صاحب سوال پوچھیے اپنا۔ جی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرا بہن ڈرائنگ سیکھتی ہے اور گانا بھی گاتی ہے۔ ابھی میں نے اسے منع کیا ہے گانا سیکھنے میں، پر وہ ضد کر رہی ہے کہ میں ڈرائنگ بھی سیکھوں گی، گانا بھی سیکھوں گی۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مسلمان میں ہے کہ ہم گانا بھی سیکھ سکتے ہیں یا ڈرائنگ بھی کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بالکل بتایا جائے گا۔ ایک اور کالر کو شامل کر لیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ غالباً کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی۔ مولانا صاحب 2 کالر ہمارے پاس ہیں اس وقت۔ بھائی راجستھان سے کال کر رہے تھے، وتر کی نماز کے کہنے 2 طریقے بتائے جاتے ہیں، بہتر کون سا طریقہ اگر بتا دیا جائے تو؟ جی وطر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وطر کی نماز انسان تہجد میں اٹھ رہا ہے یا صبح تہجد پڑھ رہا ہے 3 بجے 4 بجے 5 بجے، تو اس کو چاہیے کہ وطر کی نماز اس وقت پڑھے، کیونکہ اس نماز کو جب فرشتہ لے کر آیا تھا تو اس کا ٹائم تھا 11 بجے 11:30 بجے۔ تمام کے تمام صحابہ سو جاتے تھے اور 11 11:30 بجے اٹھنا ایک بمشکل کام ہو جاتا تھا، اور بہت سے لوگوں کی نماز چھوٹنے لگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب ایک کام کرو، عشاء کی نماز کے ساتھ میں اس نماز کو پڑھ لیا کرو، عشاء کی نماز کے ساتھ میں اس نماز کو پڑھ لیا کرو۔ لیکن اگر کوئی بھائی بآسانی سے اٹھ سکتا ہے، 2 بجے اٹھ جاتا ہے یا 2:30 بجے 3 بجے تہجد کے لیے اٹھتا ہے، تو پہلے اس کو وطر پڑھنی چاہیے، پھر اس کو تہجد پڑھنی چاہیے۔ لیکن اگر صبح آنکھ کھلنا مشکل ہے اور صبح وہ نہیں اٹھ سکتا ہے، تو عشاء کی نماز جب پڑھے تو اس میں وطر پڑھ لیا کرے، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ بالکل، بھائی کا مغربی بنگال سے الطاف کا کال تھا، انہوں نے کہا کہ ان کی بہن ہے وہ پینٹنگ یا مصوری کرنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ گانے کا بھی ان کو شوق ہے، تو کیا یہ ٹھیک ہے، کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے ایک محاورہ ہے کہ بیڑی سگریٹ دل کو جلا دیتا ہے اور گانا بجانا خدا کو بھلا دیتا ہے۔ تو شریعت نے ان چیزوں کو منع کیا ہے، اور کہ گانا سننا اور گانا گانا اور گانے کی محفلوں میں شرکت کرنا، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، اور یہ چیزیں اللہ سے دوری پیدا کرتی ہیں اور اللہ کے قرب سے دوری پیدا کرتی ہیں، اس لیے مناسب نہیں ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ گانا سننا، گانا ایک ایمان والے کے لیے مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ چلیے بہت بہت شکریہ۔ یہ پینٹنگ کے تعلق سے بھی جانا چاہ رہے ہیں، کچھ پینٹنگ وغیرہ کرتی ہیں تو کیا اس میں دلچسپی ہے ان کو، تو کر سکتی ہیں؟ ہاں، پینٹنگ میں اگر تصویر کے علاوہ کہ اگر آدمیوں کی تصویر اس میں نہیں بنانی ہے تب تو یہ کر سکتی ہیں، اور چیزوں کی پینٹنگ بنا سکتی ہیں، کچھ کر سکتی ہیں، لیکن اس میں آدمیوں کی تصویر اس طریقے سے نہ بنایا جائے۔ چلیے بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں پوسا سے بات کر رہا ہوں، مہاراشٹر۔ جی سوال پوچھیے اپنا۔ ہماری چھوٹی بچی ہے، ذرا بہت ضدی اور جاہل قسم کی ہے، اس کے واسطے عمر کیا ہے اس کی؟ اس کی عمر ہے 7 سال۔ 7 سال ہے۔ اسکول وغیرہ جاتی ہے؟ ہاں جاتی ہے۔ ضد کرتی ہے بہت؟
बहुत जिद्दी और गुस्सा बहुत है। ठीक है, चलिए बिल्कुल इंशाल्लाह बताया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। एक और कॉलर को शामिल कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कहाँ से बात कर रहे हैं? इधर साहब करनूल जिला साहब हमारा। करनूल जी, सवाल पूछिए अपना। सर आधा सिर का दर्द है सर। एक साइड सिर का दर्द है। आधे सर का दर्द है? हाँ, आधा सर का दर्द है। आपको है या किसी और को है? मेरे को है। मेरे को आपको ही है? चलिए ठीक है, इंशाल्लाह बताया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो मौलाना साहब, दो सवाल है। महाराष्ट्र से भाई का फ़ोन था, क्योंकि बच्ची है 7 साल उम्र बता रहे हैं, वो ज़िद्दी बहुत है, हालांकि स्कूल वगैरह जा रही है, गुस्सा बहुत है और ज़िद बहुत करती है। भाई को चाहिए कि सुबह 40 मरतबा पानी पे दम करके पिलाएं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसको 40 मरतबा सुबह पानी पे दम करके पिलाएं और शाम को 40 मरतबा दरूद शरीफ पानी पे दम करके पिलाएं, तो गुस्सा और ज़िद इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। चलिए, करनूल से भाई का कॉल था। आधे सर का दर्द इनको रहता है, तो इस ताल्लुक से कोई दुआ हो तो बता दीजिए। आधे सर का दर्द। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा, ये सूरत 30 सिपारे में है, सूरह ज़िलज़ाल। इसको जो है 11 मरतबा पानी पे दम करके पिया जाए तो आधे सर का जो सर दर्द है वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो नाज़रीन, आप भी इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। मौलाना हारून निज़ामी साहब लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो आपके सवालों के जो भी बेहतर जवाब हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में वो दे रहे हैं। आप भी इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। 18004192 ये टोल फ्री नंबर है। 9989974324 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। ये नंबर आप टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। एक कॉलर को शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बात कर रही हैं? बिहार से जहाना खातून। बिहार जहानाबाद। हमें तहज्जुद की नमाज का जानना। तहज्जुद की नमाज मतलब कितनी रिकात है, कितने रिकात में दुआ मांगनी है, कितने कितने रिकात में दुआ मांगनी है। और एक सवाल ये है, अभी जिसकी मतलब मौलाना साहब बताए थे कि जुमा वाले दिन जो दरूद शरीफ पढ़ना है 80 मरतबा असर के बाद, वो कौन सी दरूद शरीफ, वो हमें जानना है। ठीक है, चलिए बिल्कुल बताया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। तो मौलाना साहब, बहन का कॉल था कि तहज्जुद की नमाज का तरीका वो जानना चाह रही हैं कि कितने कितने रकात पढ़ें, फिर कैसे दुआ मांगे। इसके अलावा दुरूद शरीफ जुमे को पढ़ना है, आपने बताया अभी थोड़ी देर पहले, तो वो कैसे पढ़ें, कौन सा दुरूद शरीफ पढ़ें? तहज्जुद की नमाज अगर अल्लाह इनको तौफीक दे रहा है तो पढ़ें, और बेहतर ये है कि हर 4 रकात के बाद दुआ मांगे। 4 रकात नमाज पढ़ ले 2-2 करके, फिर ये दुआ मांगे, और फिर उसके बाद 4 रकात पढ़कर फिर दुआ मांगे, फिर 4 रकात पढ़कर इस तरीके से दुआ मांगे। कभी कभी ऐसा भी कर सकती हैं कि जय रकात इनको पढ़ना है, 2 रकात, 4 रकात, 6 रकात पूरी पढ़ लें, उसके बाद दुआ मांगे। ये दोनों तरीके ठीक है, जैसा ये मुनासिब समझें। और मैंने जो दुरूद शरीफ बताया था वो पंसूरे के अंदर भी गालिबन इनको मिल जाएगा, 24 सूरतों के अंदर भी हो सकता है, और उसको यानी यूट्यूब पे देख के याद भी कर ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। ये 80 मरतबा दुरूद शरीफ जुमे के दिन असर की नमाज के बाद उसी हैयत में बैठे बैठे बगैर बात किए हुए पढ़े। अल्लाह 80 साल के गुनाह मुआफ़ करेगा, 80 साल की इबादत का सवाब लिखेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक और कॉलर को शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कहाँ से बात कर रही हैं? जी चित्तौड़ से। चित्तौड़, जी बताइए, सवाल पूछिए अपना। वो मेरी बहन के पैर बहुत सूज रहे हैं, इसके लिए दुआ कोई बताइए। पेट में सूजन है? हाँ। पैर में? पैर में। ठीक है, चलिए बिल्कुल इंशाल्लाह बताया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कोलार से बात कर रही हूँ, जरीन ताज। जी, सवाल पूछिए। जी, हमारे अम्मी के हवाले से पूछना था। हमारे अम्मी को
भाई पैसे देता था घर खर्च के लिए, वो नहीं देता है घर खर्च के लिए, थोड़ा प्रॉब्लम चलता है, अम्मी बहुत सोचते रहती है, बात भी नहीं करता। बीबी के बारे में झगड़ा हो गया था कि बीबी के लिए कुछ बात में झगड़ा हो था, इसलिए वो पैसे भी नहीं देता, बात भी नहीं करता। क्या ये जायज है? और एक सवाल पूछना था कि मेरी लड़की को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, कुछ भी बात नहीं मानती है, बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, कुछ भी बोलो तो उल्टा ही बताया गया कि इस करती है। ताल्लुक से, हालांकि इससे पहले जो कॉलर थे उनको बताया गया था, उनकी भी बच्ची थी 7 साल की, बहुत गुस्सा करती है, उसके ताल्लुक से दुआ बताई गई थी। बहरहाल आपको भी बता देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो मुफ्ती मौलाना साहब, 2 सवाल आ गए हैं। एक चित्तौड़ से बहन का कॉल था, उन्होंने कहा था कि पैरों में बहुत तकलीफ है, पैरों में सूजन आ जाती है, इस ताल्लुक से अगर कोई दुआ हो, कोई वजीफा हो तो बता दीजिए। पैरों में अगर सूजन आ जाती है तो उसके लिए तब्बत यदा अबी लहब, सूरे लहब, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, ये पूरी दुआ जो है वो पढ़ें तकरीबन 11 मरतबा, और पानी पे दम करके पिए तो इंशाल्लाह ये तकलीफ दूर हो जाएगी। चलिए, बिल्कुल। और एक और कॉल था बहन का, उन्होंने कहा कि उनका भाई है, वालदा को जो भी खर्चे का पैसा वगैरह देता था, लेकिन शादी के बाद कुछ अहलिया को लेकर कुछ अनबन हुई है, उसके बाद पैसे वगैरह देना उसने बंद कर दिया है। इसके अलावा इन्होंने एक और सवाल किया, जैसे इससे पहले भी हमने बताया था कि 7 साल की बच्ची थी, इनकी भी बच्ची है कोई और बहुत गुस्सा करती है, चिड़चिड़ी है, इस ताल्लुक से अगर कोई वजीफ़ा हो, कोई दुआ हो तो बता दीजिए। शौहर के लिए इनको चाहिए कि जब ये बिस्तर पे लेट जाएं तो एक तस्बीह पढ़ें, या रऊफ़ू या जामियू, या रऊफ़ू या जामियू, इस तरीके से ये पढ़ें तो, और उसके बाद आंखें बंद करके तसव्वुर कर लें तो इंशाल्लाह इनके फर्मा बरदार हो जाएंगे। और अगर इनकी बेटी के अंदर गुस्सा है और चिड़चिड़ापन ज़्यादा है तो उसके लिए भी कुरान मजीद के अंदर दूसरी दुआ आती है, वलकाज़िमीन अलगैज़ वल आफ़ीन अनिन नास, वलकाज़िमीन अलगैज़ वल आफ़ीन अनिन नास। इस दुआ को 40 मरतबा पानी पे दम करके पिलाएं तो इंशाल्लाह ये तकलीफ दूर हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आप भी इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। लगातार हमारे साथ मौलाना हारून निज़ामी साहब बने हुए, जो आपके सवालों के इस वक्त जवाब दे रहे हैं। 180041925154 ये टोल फ्री नंबर है। 9989997432 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। एक कॉलर को शामिल करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कश्मीर से। कश्मीर से। सवाल पूछिए अपना। मेरा सवाल यह है, मेरी 2 छोटी बहनें हैं, उनका कोई बच्चा नहीं है। 3-4 साल हो गए उनकी शादी को, मगर अभी तक कोई उम्मीद नहीं है, तो उसके लिए मुझे कोई दोनों बहनों को? हाँ, दोनों बहनें, 2 छोटी 2 बहनें। ठीक है, बिल्कुल, इंशाल्लाह बताया जाएगा। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम फरीद है। जी फरीद साहब, बताइए, सवाल पूछिए अपना। ये मेरा सवाल ये है कि मुझे 2-3 दिन से ख्वाब में खाली छोटे छोटे बच्चे आते हैं, मतलब डिलीवरी जो होती ना, 2 दिन के 3 दिन के बच्चे। ख्वाब की ताबीर तो नहीं बताते। कोई और सवाल है आपके पास? अच्छा, तो मतलब नहीं, मुझे जो है, और दूसरा सवाल ये है कि मेरे मतलब कारोबार में बरकत नहीं है, मतलब 1-2-3 महीने से बहुत परेशानी चल रही है। किस तरह का कारोबार है आपका? मैं वेल्डर हूँ। वेल्डर है। चलिए, बिल्कुल, इंशाल्लाह बिल्कुल बताया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हैदराबाद से कॉल किया। तो मौलाना साहब, 2 कॉलर, कश्मीर से बहन का कॉल था कि उनकी 2 छोटी बहनें हैं, शादी को 3 साल 4 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन कोई औलाद नहीं है। इस ताल्लुक से अगर कोई बेहतर वजीफ़ा हो, कोई दुआ हो, बता सकें तो। बहन को चाहिए कि 2 अमल करें, अल्लाह इनको साहिब औलाद बनाएगा। पहला अमल तो ये करना है कि हर नमाज के बाद एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की पढ़नी है। हर नमाज के बाद एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की पढ़नी है। शौहर भी उनके पढ़ें और ये भी पढ़ें। और दूसरा अमल ये करना है कि 40 खजूर ले ले।
40 खजूर ले लें और उस खजूर के ऊपर जो है 141 मरतबा सूरह कौसर इन्ना आतोइना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, ये सूरत 141 मरतबा खजूर के ऊपर दम कर ले और रोज़ाना जो है सोने से पहले एक शौहर भी खाए कि उनकी बीवी भी खाए। ये 2 अमल करें, अल्लाह इनको साहिब औलाद बनाएगा। चलिए, भाई का हैदराबाद से कॉल था। कारोबार में बरकत के लिए वेल्डर हैं ये, लेकिन करें 1-2 महीने से दिक्कतें कुछ पेश आ रही हैं, तो कारोबार में बरकत के लिए अगर कोई दुआ हो तो बता दीजिए। भाई को भी 2 अमल करने चाहिए बरकत के लिए। मगरिब के बाद घर में सारी औरतें बैठकर सूरह वाक़िया की तिलावत रोज़ाना करें। बाद नमाज मगरिब के तमाम घर की औरतें बैठकर सूरह वाक़िया की रोज़ाना पाबंदी के साथ तिलावत करें। और दूसरा अमल भाई को ये करना है कि वो जाने से पहले, घर से निकलने से पहले 2 रकात नमाज पढ़े और 21 मरतबा सूरह कौसर पढ़कर तब निकले। 21 मरतबा सूरह कौसर इन्ना आतोइना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, ये पढ़कर तब घर से निकले। अल्लाह इनके कारोबार में बरकत अता करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? नडियाद से बात कर रहा हूँ, गुजरात से। गुजरात से, जी सवाल पूछिए अपना भाई। तो मेरी बीवी है, उसके पैरों में, घुटनों में दर्द रहता है। ठीक है, रफीक भाई बोलता हूँ। घुटनों में दर्द रहता है? हाँ हाँ। चलिए, बिल्कुल इंशाल्लाह बताया जाएगा। तो मौलाना साहब, भाई का गुजरात से कॉल था, उनकी अहलिया के घुटनों में बहुत दर्द रहता है, पैरों में और घुटनों में दर्द रहता है। इस ताल्लुक से अगर कोई दुआ हो तो बता दीजिए। कुरान मजीद के अंदर एक दुआ आती है, ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून, ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून, ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून। 101 मरतबा इस दुआ को पानी पे दम करके पिया भी जाए, तेल के ऊपर दम करके मालिश भी किया जाए, घुटनों का दर्द इंशाल्लाह दूर हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना हारून निज़ामी साहब। तो नाज़रीन, आज के एपिसोड में बस इतना ही। इंशाल्लाह पीर के रोज़ दुआ और दुआ में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।